میری طرف سے تعبیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں پاکستان کے صوبے پنجاب کے ایک تاریخی، قدیمی اور گزرے وقتوں میں منفرد خصوصیات کے حامل شہر بہاولپور کی۔ بہاولپور قیام پاکستان سے پہلے ایک خود مختار اور آزاد ریاست کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن قائد اعظم اور نواب بہاول خان کی دوستی نے اس ریاست کی آزاد حیثیت کو ختم کر کے پاکستان میں ضم ہونے کو زیادہ ترجیح دی اور ایک خود مختار ریاست کی بجائے پاکستان کے شہر کے طور پر اپنی قربانیوں کو لازوال حیثیت کا درجہ دلوایا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام نئے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ہمارے چینل تعبیر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ دوستو، بہاولپور پنجاب کا ضلع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ڈویژن کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ بہاولپور پاکستان کا 12واں بڑا شہر ہے۔ اس کا رقبہ 232 مربع کلومیٹر اور آبادی 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق 8,20,740 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ شہر دریائے ستلج کے بائیں کنارے اور کراچی ریلوے ٹریک پر واقع ہے۔ بہاولپور کا شمار پاکستان کے ان چند شہروں میں ہوتا ہے جہاں آپ کو کشادہ اور صاف ستھری سڑکیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ شہر صفائی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کے لوگ مزاج کے اعتبار سے تحمل، ملنسار اور ایثار کا جذبہ رکھنے والے ہیں۔ لوگوں میں احساس اور مروت بھی خوب رچی بسی ہوئی ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس شہر کو نوابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ بہاولپور کے قریب بہنے والا دریائے ستلج کبھی پاکستان کا بہت بڑا دریا مانا جاتا تھا، جو اس وقت صرف ایک دریا ہونے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ پاکستان کے دیگر پرانے اور تاریخی شہروں کی مانند بہاولپور کے بھی 2 حصے ہیں۔ پرانے شہر کے گرد ایک دیوار ہوا کرتی تھی جس میں 8 داخلی دروازے ہوا کرتے تھے۔ شہر کے بحر والی سڑک کو سرکولر روڈ کہتے ہیں۔ بہاولپور قیام پاکستان سے پہلے جب ایک ریاست کی حیثیت رکھتا تھا، اس وقت اس کا علاقہ ضلع بہاول نگر اور ضلع رحیم یار خان تک پھیلا ہوا تھا۔ بہاولپور کو نواب بہاول خان اول نے 1748 میں آباد کیا تھا۔ اس شہر کو آباد کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ جگہ افغانستان کے شہر کابل سے وسطی ہندوستان میں جانے والے راستے پر موجود تھی، اور تاجروں کی آمد و رفت کی وجہ سے یہ چھوٹی سی بستی بہت کم وقت میں ایک بہت بڑا شہر بن گئی۔ قیام پاکستان کے بعد 7 اکتوبر 1947 کو اس ریاست نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ اس شہر کے آباد ہونے سے آبادیوں کے ایک اہم مقام اوچھ شریف اور قلعہ دراوڑ کی اہمیت بھی کافی کم ہو گئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دور ایسا بھی آیا جب یہ شہر عباسی خاندان کا دارالخلافے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ جب پنجاب پر مغلوں کی گرفت کمزور ہونے لگی اور تمام پنجاب اور سرحد یعنی ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور تک سکھوں نے قبضہ کر لیا، تو بہاولپور ایک ایسی ریاست تھی جس نے بہت سے مسلمانوں کو پناہ دی جو سکھوں کی لوٹ مار کا نشانہ بنے تھے۔ نواب بہاول خان سوم نے بہادری سے سکھوں کا مقابلہ کیا اور ان کی طاقت کو پارا پارا کر دیا۔ 1833 میں بہاولپور مزید شہرت اختیار کر گیا جب انگریزوں نے اپنا تجارتی سامان برطانیہ لے جانے کے لیے دریائی راستوں کا استعمال شروع کیا، اور تمام وسطی ہندوستان کا تجارتی سامان بہاولپور سے ہوتا ہوا برطانیہ جاتا۔ 19ویں صدی میں بہاولپور کو ریشم، کپاس اور لنگی بنانے کی وجہ سے ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی، کیونکہ اس علاقے کا پیدا کردہ ریشم پوری دنیا میں مشہور تھا۔ ریاست بہاولپور میں آج بھی ہمیں دیکھنے کے لیے قدیم اور یادگار چیزیں ملیں گی۔ اس شہر اور اس ریاست کے عروج و زوال کی کہانی خود اپنی زبانی سناتی محسوس ہوتی ہیں۔ بہاولپور میں بنے محلات اپنے عظیم بادشاہوں کی یاد دلاتے ہیں۔ 1875 میں تعمیر ہونے والا نور محل 125 سال گزرنے کے بعد بھی اپنی رنگینیوں سے ہماری آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ دریائے ستلج پر بننے والا ریل کا پل، جو اس وقت خطے کا سب سے پہلا پل تھا، 1878 میں تعمیر کیا گیا، جو تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبا ہے اور آج 150 سال گزرنے کے بعد بھی قابل استعمال ہے۔ اس پل کا نام ایمپریس برج ہے اور یہ آج بھی اپنی مضبوطی اور دل فریبی کے نظارے پیش کرتا ہے۔
बहावलपुर का इजर्टन कॉलेज 1886 में तामीर किया गया, जो सैकड़ों साल पहले के हुक्मरानों की तालीम से मोहब्बत का अलंबरदार है। 1898 में इस खित्ते का सबसे पहला और बेहतरीन अस्पताल कायम किया गया, जिसे बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल कहा जाता है। इसी तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1925 में रखी गई, जिसका नाम शुरू में जामिया अब्बासिया था। कराची में मौजूद गवर्नर हाउस नवाब बहावल खान का दिया हुआ तोहफा है। नवाब साहब ने क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहली सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और आने वाले मेहमानों को सोने के बर्तन खाने पर फराहम किए। यही नहीं, हिंदुस्तान से आने वाले मुहाजिरीन को न सिर्फ पनाह दी बल्कि इनकी माली मुआवनत भी दिल खोल कर की। नवाब साहब ने लाहौर में कायम एचिसन कॉलेज, किंग एडवर्ड कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए अपने खजानों के मुंह खोल दिए थे। बहावलपुर का सादेगढ़ पैलेस नवाबों का बनाया हुआ सबसे बड़ा और शानदार महल था, जिसमें उस वक्त बिजली का कारखाना, डेयरी फार्म, झील और चिड़ियाघर भी मुयस्सर था। इसी तरह यहाँ का दरबार महल पुराने नवाबों की याद ताज़ा करता है। शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ साउथ एशिया का सबसे बड़ा जंगली हयात का पार्क लाल सुहारा पार्क मौजूद है। इस पार्क की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि इसमें तीनों चीज़ें एक ही वक्त में मौजूद हैं, यानी सहरा, जंगलात और पानी। यहाँ पर खाने पीने के लिए एक बेहतरीन होटल भी मौजूद है। बहावलपुर का सादक पब्लिक स्कूल रकबे के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा स्कूल है। शहर में बेहतरीन होटल्स, रिहायशी इमारात और खाने पीने के बहुत से पॉइंट्स मौजूद हैं। यहाँ का चिड़ियाघर लाहौर के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इस शहर में इंटरनेशनल म्यार का क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है। इस स्टेडियम में 1955 के दौरान भारत और पाकिस्तान के माबैन एक टेस्ट मैच खेला गया था। शहर में खेली जाने वाली दीगर खेलों में हॉकी, टेनिस, फुटबॉल और रेस शामिल है। हॉकी के साबिक खिलाड़ी समीउल्लाह खान भी इसी शहर में पैदा हुए थे। साबिक मेंबर कौमी असम्बली नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी, मेंबर सूबाई असम्बली समीउल्लाह चौधरी, पाकिस्तान कौमी असम्बली के साबिक मेंबर और पंजाब की सूबाई असम्बली के मेंबर मुमताज़ खान और माजूर क्रिकेट टीम के प्लेयर मोहम्मद जुबैर सलीम का ताल्लुक भी बहावलपुर से है। बहावलपुर का पोस्टल कोड 63,100 और एरिया कोड 062 है। बहावलपुर की इकानमी ज़री अजनास और कुछ हद तक छोटी इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा मुनहसर है। ज़री अजनास में गन्ना, कपास, गंदम, सूरजमुखी, सरसों, चावल, आम, खजूर, अमरूद और किन्नू शामिल हैं। इस शहर के आम और किन्नू बैरून मुल्क भी भेजे जाते हैं। इस इलाके की सब्जियों में प्याज, टमाटर, गोभी, आलू और गाजर सरे-फहरिस्त हैं। बहावलपुर शहर में पोल्ट्री फीड, ऑयल मिल्स, काटन मिल्स, जूस मिल्स, स्टील और आयरन की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल की कताई, टेक्सटाइल की बुनाई और खाना पकाने के ऑयल की छोटी छोटी बेशुमार इंडस्ट्रियां मौजूद हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की बल्कि इस इलाके के मजदूर तबके के लिए खुशहाली की ज़मानत हैं। बहावलपुर की कुल जीडीपी 2.9 मिलियन यूएस डॉलर है। यहाँ की फीकस आमदनी औसत 5,85,970 रुपये सालाना है। कहा जाता है कि अगर किसी ने बर्बादी देखनी हो तो एक बार बहावलपुर के सादेगढ़ पैलेस की कहानी या तो किसी बुजुर्ग से सुन ले या फिर खुद बहावलपुर जाकर इस हसीनो जमील दुनिया की हर आरैश से आरास्ता उजड़े हुए महल को एक नज़र देख ले, तो इस बात का यकीन पुख्ता हो जाएगा कि आबादियों में वीरानियाँ फैलते ज़्यादा देर नहीं लगती। इसी बात के पेश नज़र थोड़ी सी तस्वीर कशी सादेगढ़ महल की करता चलूँ। बहावलपुर से 50 किलोमीटर दूर अहमदपुर शर्किया के इलाके डेरा नवाब में वाक़े साबिक बहावलपुर रियासत का मरकज़ी महल सादेगढ़ पैलेस एक मुनफरिद और दुनिया की हर जिद्दत से आरास्ता चीज़ों से मुज़य्यन महल था, जो आज वीरानियों और बर्बादियों की एक ज़िंदा मिसाल बन चुका है। बहावलपुर रियासत का अब्बासी ख़ानदान पहले किला द्रावड़ में रहायश पजीर हुआ करता था, लेकिन बाद में रियासत की तोसी की बदौलत इस ख़ानदान ने डेरा नवाब में रहायश रखने का अज़म किया। जब डेरा नवाब में दाखिल हों तो सबसे पहले सादिक महल की ऊंची ऊंची दीवारों पर नज़र पड़ती है। इस महल की सिर्फ एक तरफ की दीवार की लंबाई 1 किलोमीटर है।
सादिक गढ़ पैलेस आज से 37 साल पहले तक रंगो नूर की बहार में डूबा हुआ महल था, लेकिन अब एक उजड़े हुए शहर का नज़ारा पेश करता है। इस महल के अहाते में दरबार, जनाना हाल, डाइनिंग हाल, तुर्की हाल, शाही मस्जिद और इस्तकबालिया के अलावा असला खाना, बंदूक साज फैक्ट्री, पाकिस्तान का पहला बिजली घर, वाटर प्लांट, डेयरी फार्म, अस्तबल, मोटर वर्कशॉप के अलावा कीमती पत्थरों की तराश का एक सेंटर भी कायम था। मगर इस वक्त ये सभी खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। महल की मस्जिद जो कभी खूबसूरती का नमूना थी, अब इसकी चार दीवारी भी गिर चुकी है और ऐसा भी हो सकता है कि आज इसमें कोई नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं आता होगा। इस वक्त सादिक खान की तमाम जायदाद के 23 हिस्से हो चुके हैं। सफ़ेद रंग की दीवारों वाला दरबार महल का अंदरूनी हिस्सा, जिसमें क्रिस्टल से जुड़ा 8 टन वजनी फानूस जगमगाता था, आज अंधेरों में डूबा हुआ है। महल के फर्श उखड़े हुए और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। ये टूटे हुए शीशों वाली खिड़कियां और उखड़े हुए दरवाजे चमगादड़ों को आने जाने के लिए रास्ता फराहम करते हैं। डाइनिंग हॉल की शीशों के टुकड़ों से बनी छत आज भी मौजूद है और आज वो खाली जगह बर्बादी का मंजर पेश करती हैं जहां कभी कीमती और नायाब तस्वीरें लगी हुआ करती थीं। इस डाइनिंग हॉल में एक वक्त में 100 अफराद को सोने के बर्तनों में खाना पेश किया जाता था। कुछ मुलाजमीन का कहना है कि दरबार हॉल का सारा फर्नीचर क्रिस्टल का बना हुआ था, जिसके हत्थे सोने के थे, लेकिन इस फर्नीचर में से आज एक भी कुर्सी मौजूद नहीं है। एक असले खाने में 12 के करीब एक दूसरे पर रखी तोपें खड़ी हैं, जिनके इर्द गिर्द झाड़ियां उगी हुई हैं। महल के एक तय खाने में वाटर प्लांट नस्ब था, जहां पानी ठंडा और गर्म करने का इंतज़ाम किया गया था। बस यहाँ पर इतना कहना काफ़ी होगा कि अगर किसी ने बर्बादी की जीती जागती तस्वीर देखनी हो तो एक बार सादिक गढ़ पैलेस का विज़िट ज़रूर कर लें। बहावलपुर के दीगर तारीखी और तफरीही मकामात में ख़त्म नबूवत चौक, जो रात को रोशनियों का एक दिलफ्रेब नज़ारा पेश करता है, अब्बासी मस्जिद, द्रावड़ किला जो तारीख में अपना एक अलग मकाम रखता था। बहावलपुर के दीगर तारीखी और तफरीही मकामात में ख़त्म नबूवत चौक, जो रात को रोशनियों का एक दिलफ्रेब नज़ारा पेश करता है, अब्बासी मस्जिद, द्रावड़ किला जो तारीख में अपना एक अलग मकाम रखता था। बहावलपुर की मरकज़ी लाइब्रेरी, गुलजार महल, नूर महल, सरायकी चौक में बना पानी का कुआं, जो यकीनन इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, लाल सुहारा पार्क, बहावलपुर ज़ू, बहावलपुर म्यूज़ियम, दुबई महल, फवारा चौक, गुलजार महल, जामिया मस्जिद अल सादिक, SS वर्ल्ड फैमिली पार्क और इनके अलावा और भी बहुत से ऐसे तफरीही और तारीख़ी मकामात हैं जो सैरो सियाहत के शौकीन लोगों के दिलों को मोह लेने के लिए मुंतशिर हैं। बहावलपुर के बड़े और मशहूर तालीमी इदारों में इस्लामिया यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट सादिक कॉलेज फॉर वोमेन, कायद आज़म मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट सादिक इजर्टन कॉलेज काबिल ज़िक्र हैं। दोस्तों, ये थी बहावलपुर के बारे में एक मालूमाती और ख़ूबसूरत सी वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ये लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से शहर की वीडियो देखना पसंद करते हैं। मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त फ़ारूक अदील को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।